Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you passive voice on past continuous tense. It is significant topic for speaking English as well as grammar. Mainly here we are looking our speaking part. It is also mandatory topic for those applicants who are preparing government competition like bank, SSC, railway, SEBI, LIC, defense, DRDO, DSSB, so on. Now, it is also prominent topic for those students who are studying school and college. Here I will use both language, Hindi and English, to explain each session so that you may understand it very easily. Now, here we know past continuous tense passive voice. And as previous time we have studied its old structure, but here I will teach you by using different kind of structure to construct sentence in passive voice for past continuous tense. Now, structure for affirmative, and declarative sentence. Now, firstly we are looking its structure for affirmative sentence, assertive sentence and declarative sentence, all are same. Affirmative, assertive and declarative sentences all are same, ये सभी आपके सेम होते हैं. First I give various illustration by using Hindi language. What type of question are generally asked during conversation for passive voice in past continuous tense? Here I am giving various illustration in Hindi. फॉर इलस्ट्रेशन, आजकल इंग्लिश बोली जा रही थी, बुक्स को बेंच पे रखा जा रहा था, बच्चों को क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था, आपसे गाड़ी में मुलाकात की जा रही थी, मनी को एटीएम से निकाला जा रहा था, चेक को बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा था, उसके फादर की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही थी, आपको जॉब से सस्पेंड किया जा रहा था, मुझे बच्चों के द्वारा मारा जा रहा था, उनसे इंग्लिश में बात की जा रही थी, आपको शादी में इनवाइट किया जा रहा था, आपको मैनेजर अपॉइंट किया जा रहा था, बेल को ग्रांट किया जा रहा था, मुझे तंग किया जा रहा था, मुझे पैसे दे रहे थे, ब्याज लिया जा रहा था, कार को रोड पर चलाया जा रहा था, उसका वेट रिड्यूस किया जा रहा था, पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए जा रहे थे, उनके साथ मारपीट की जा रही थी, मोबाइल को मार्केट से खरीदा जा रहा था, बच्चों को गार्डन में क्रिकेट खिलाया जा रहा था, लोगों को थिएटर में मूवी दिखाई जा रही थी. इस तरीके के जितने भी सेंटेंस है, these are said to be passive voice in past continuous tense. Here we will know first type of sentence by using structure and how to construct such type of sentence for our conversation. Now, Hindi is only for your explanation. Both are different language to each other. So we do not follow Hindi by translating English. It is only for explanation so that you understand it very easily. Now, our structure for passive voice: passive subject plus was oblique verb plus being plus embedded
plus by. Now, our structure for past continuous tense in passive voice. Passive subject plus was oblique verb plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent plus other words. Again, passive subject plus was oblique verb plus being plus embittered plus by passive object, it means optional agent plus other words. This is the structure for affirmative sentence in passive voice. Now, as we noted, when our passive subject is singular noun, means he, she, it, any name, I, and third person pronoun like your father, my brother, his sister, your parents, so on. You have to put was. जब कभी भी हमारा पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, मीन्स ही, शी, इट, आई, एनी नेम एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन लाइक योर फादर, माय ब्रदर, हिज फ्रेंड, योर पेरेंट्स, सो ऑन, यू हैव टू पुट वॉज. सिमिलरली, if your passive subject is plural noun, means we, they, you, more than one object like people, police, crowd, mob, jury, so on, you have to put were. Now, here you have cleared difference between was and were. Here you are looking. This is different structure to conduct passive voice. Usually we have studied. Now, one more thing I want to tell you. By passive object we call it optional agent. By passive object we call it optional agent. ये हमारा optional agent होता है by passive object. इसका रोल कैजुअल इंग्लिश में नहीं होता. इसको हम ज्यादा सेंटेंस की फ्रेमिंग में एलिमिनेट करते हैं. जब कभी भी हम किसी एजेंट के थ्रू वर्क परफॉर्म करेंगे तो हमें बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को पुट करना है सेंटेंस के फ्रेमिंग करते समय. अदरवाइज इट हैज टू बी एलिडिकेटेड बाय कंडक्टिंग सेंटेंस. आप इसको एलिमिनेट करेंगे जब कभी आपका एजेंट प्रेजेंट ना हो, और जब किसी आप एजेंट के थ्रू वर्क को परफॉर्म करेंगे तो आपको ये एजेंट पुट करना एसेंशियल है. अभी आप एजेंट का मीनिंग समझ गए. एजेंट हमें किस जगह पे पुट करना है, किस जगह पे नहीं. एजेंट मीन्स बाय पैसिव ऑब्जेक्ट. नाउ so far we have been studying our old structure to construct sentence in passive voice. Now I tell old structure, only explaining you. Object plus was, were plus been plus embittered plus by subject and others. अब तक हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पैसिव वॉइस की स्टडी करते आ रहे थे. अब तक हमने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पैसिव वॉइस की स्टडी करी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ये हमारा स्ट्रक्चर होता था ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी प्लस एम्बिटेड प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स या फिर अदर्स. इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अब तक हमने पैसिव वॉइस की स्टडी करी है. बट अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे. यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो भी आपका सही है, बट एज पर भी आप इसको एलिमिनेट करें. क्यों? क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं आई, सी, ही, यू, ये ऐसा सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करता है. ये ऐसा सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं. इसको हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं. अभी आई कहीं कहीं मैं लिख दूंगा, ही लिख दूंगा, सी लिखूंगा तो आप लोग को कंफ्यूजन होगी. सर ये तो आपने ऑब्जेक्ट तो होता है मी, हर, हिम, देम, अस, सो ऑन.
ऑब्जेक्ट क्यों लिखा? तो कहने का मतलब ये है, आप इस तरीके से समझेंगे आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। ही, शी, इट, एनी नेम, वी, दे, यू, आप पैसिव सब्जेक्ट समझें और इस स्ट्रक्चर को एरिडिकेट करें। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिफरेंस बताया, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल, नाउ वी लुक मोर एग्जांपल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस। वी लुक एग्जांपल। फर्स्ट आई एम टेलिंग एग्जांपल बाय यूजिंग स्ट्रक्चर and then here I will use by passive object. Then this example will be again told you by not using by passive object. Example, they are, sorry, example, they were being told physics by him in the college. They were being taught physics by him in the college. They were being taught physics by him in the college. Its Hindi meaning will be, उन्हें कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी, उन्हें कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी, या फिर उन्हें कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा रहे थे। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप दोनों में से किसी भी हिंदी को यूज कर सकते हैं, मीनिंग विल बी सेम। अभी मैंने आपको एक हिंदी बताई, उन्हें कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा रहे थे। ये हिंदी हमारी ज़्यादा यूज होती है, इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज करें। बाकी आपकी चॉइस है, दोनों तरीके से हिंदी हो सकती है। एज पर स्ट्रक्चर, दिस इज आवर पैसिव सब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट होता है। प्लूरल नाउन वर्ब, देन बीइंग एंड बी थर्ड टॉट। समवेयर वी कॉल इट अदर वर्ड और कंप्लीमेंट। आप इसको अदर वर्ड कंसिडर करें फिजिक्स को, या फिर कंप्लीमेंट समझें। कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड बोथ आर सेम। बाय हिम we call it by passive object. And this is into college, that is our other words. Now sentence has been constructed by using structure. इस सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर का यूज करके कंस्ट्रक्ट किया है। अभी आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू। ये जो बाय पैसिव ऑब्जेक्ट होता है, बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, इट हैज टू बी एरिडिकेटेड। इसको आपको हटाना है, बिकॉज इफ यू डू नॉट वांट टू पुट एजेंट, इट विल बी एलिमिनेटेड। यदि आप किसी एजेंट को पुट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। सिंपल अगर मैं बोलता हूँ, हिंदी में आप समझे, उन्हें कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी, उन्हें कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी, हम जनरली ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई एजेंट को नहीं प्ले किया, मीन्स किसी के माध्यम से वर्क नहीं किया, इसलिए मैंने इसको इरेडिकेट कर दिया। आप समझे? मैं सेपरेट लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं। नाउ देवर being told physics in the college. They were being taught physics in the college. They were being taught physics in the college. Its meaning will be, उन्हें कॉलेज में
फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी, उन्हें कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी। दैट इज इट्स मीनिंग। आप लोग देख रहे होंगे पैसिव सब्जेक्ट वर्ब बीइंग एम्बिट टॉट physics to college, that is our other part. It means if agent is not available, it has not to be marked anywhere. One more thing, I tell you two example, you have to listen carefully. First I am telling active voice example in Hindi. वह इंटरव्यू के लिए बुला रही थी, वह इंटरव्यू के लिए बुला रही थी। यह हमारा एक्टिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी इसी सेंटेंस को मैंने कहा उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। ये हमारा पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, कौन बुला रहा था ये हमें नहीं पता, इसलिए ये हमारा पैसिव वॉइस है। और अभी मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला वह इंटरव्यू के लिए बुला रही थी, एक्शन को परफॉर्म को कौन कर रही है, वह खुद कर रही है, इसलिए हमारा एक्टिव वॉइस है। मैं उन्हें तंग कर रहा था, मैं उन्हें तंग कर रहा था। यह हमारा एक्टिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने वाला मैं हूँ, सब्जेक्ट कौन हूँ मैं, आई। अभी इसी सेंटेंस को मैंने कहा मुझे तंग कर रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे। यह हमारा पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मुझे कौन तंग कर रहा था ये मुझे नहीं पता, सब्जेक्ट को कौन परफॉर्म कर रहा है ये नहीं पता, इसलिए हम इसे पैसिव वॉइस समझते हैं। सिमिलरली आप जॉब दे रहे थे, आप जॉब दे रहे थे, ये आपका एक्टिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी सेंटेंस समझे, आपको जॉब दे रहे थे, आपको जॉब दे रहे थे, ये आपका पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहाँ पे आपको जॉब कौन दे रहा था ये हमें नहीं पता, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा हमें नहीं पता, इसलिए हमारा पैसिव वॉइस है। आपको जॉब दे रहे थे, आप एक शब्द की हिंदी से पूरी इंग्लिश डिफरेंट हो जाती है, सर एक वर्ड से पूरा सेंटेंस डिफरेंट होता है। वहां आप जॉब दे रहे थे और आपको जॉब दे रहे थे, ये डिफरेंस है एक्टिव से पैसिव में। जब कभी हमारा सब्जेक्ट अपसेंट है वी कॉल इट पैसिव वॉइस। नाउ वी लुक मोर एग्जांपल। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट वी आर टेकिंग लिविंग बीइंग एग्जांपल। शी was being rushed to hospital She was being rushed to hospital immediately. She was being rushed to hospital immediately. Its Hindi meaning will be उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था या फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। वो हॉस्पिटल पहुंचा रही थी तो ये तो हम आपका एक्टिव वॉइस होता, लेकिन उसे हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे, कौन पहुंचा रहा है ये हमें नहीं पता। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, दिस इज आवर पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जांपल। He was being threat man to kill. He was being threatened to kill. He was being threatened to kill. Its Hindi meaning will be उसे मारने की धमकी दी जा रही थी, उसे मारने की धमकी दी जा रही थी। That is its Hindi meaning, या फिर उसे मारने की धमकी दे रहे थे। अभी आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे देयर इज नो एजेंट, यहाँ पे कोई एजेंट का रोल नहीं है, मीन्स बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का, इसलिए मैंने पुट नहीं किया। हम जनरली कन्वर्सेशन में इसी तरीके से सेंटेंस बोलते हैं। यदि आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो आप यहाँ पे आपको एजेंट पुट करना पड़ेगा। सपोज दैट he was being threatened to kill by him. He was being threatened to kill, क्या उसे उसके द्वारा मारने की धमकी दी जा रही थी, इस तरीके से इसकी हिंदी होगी। क्यों? जब कभी आप एजेंट को पुट करेंगे, by him, by me, anything else, by us,
आप एजेंट पुट करना चाहते हैं तो इस तरह से पुट कर सकते हैं, बट आप एजेंट को रिप्लेस करने की कोशिश करें, ये जो ने बोले। नाउ our next example, Rahul was being listened to the music. Rahul was being listened to the music. Rahul was being listened to the music. Its Hindi meaning will be राहुल को म्यूजिक सुनाई जा रही थी या फिर राहुल को म्यूजिक सुना रहे थे. That is its Hindi meaning. Now, our next example. Your father property was being destroyed by him nowadays. Your father property was being destroyed by him nowadays. Your father property was being destroyed by him nowadays. Its Hindi meaning will be आजकल आपके फादर की प्रॉपर्टी उसके द्वारा डिस्ट्रॉय की जा रही थी. आजकल आपके फादर की प्रॉपर्टी उसके द्वारा डिस्ट्रॉय की जा रही थी. That is its Hindi meaning. Now look carefully. If I eliminate by him, यदि मैं by him का जो रोल है एजेंट का, इसको एलिमिनेट कर दूं, मीन्स इसको हटा दूं, तो आप सेंटेंस इस तरीके से बोलेंगे, योर फादर प्रॉपर्टी वॉज बीइंग डिस्ट्रॉयड नाउडेज. योर फादर प्रॉपर्टी वॉज बीइंग डिस्ट्रॉयड नाउडेज मीन्स आपके फादर की आजकल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही थी. आप समझ गए. जब आप एजेंट के थ्रू वर्क प्ले करेंगे तो आपको ये एजेंट पुट करना है बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आप इसे एलिमिनेट करें. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. They were being awakened early in they were being awakened early in morning. They were being awakened early in morning. Its Hindi meaning will be उन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठाया जा रहा था. That is its Hindi meaning. Our next example. We were being honored by them. We were being honored by them. Its Hindi meaning will be हमें उनके द्वारा सम्मान दे रहे थे या फिर हमें उनके द्वारा सम्मान दिया जा रहा था. Now you are looking that
Here again we have used optional agent, means by passive object to construct sentence, because I want to make this work by using passive object. That is why I am putting it. मीन्स ये ऑप्शनल एजेंट के थ्रू मैं वर्क को परफॉर्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ. और यदि आप नहीं करना चाहते तो आप इसे एलिमिनेट कर दें. आप यहाँ ऑनर तक समझें, ऑनर तक वी वर बीइंग ऑनर्ड मीन्स हमें सम्मान दे रहे थे, हमें ऐसे बोलते हैं हमें सम्मान दे रहे थे. वी वर बीइंग ऑनर्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस होता है. हम दे रहे थे तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन हमें दे रहे थे सम्मान. कौन दे रहा था? हमें नहीं पता. दैट इज व्हाई इट इज पैसिव वॉइस. नेक्स्ट एग्जांपल. His friends were being appreciated. His friends were being appreciated. His friends were being appreciated. Its Hindi meaning will be उनके फ्रेंड की तारीफ की जा रही थी या फिर उनके फ्रेंड की तारीफ कर रहे थे. That is its Hindi meaning. Now here we have put living wing object example. Now we are going to take one non-living object example. अभी हमने लिविंग विंग के एग्जाम्पल लिए हैं, अभी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल देख रहे हैं. नाउ समझिए, इंग्लिश was being spoken all over the English was being spoken all over the world. English was being spoken all over the world. Its Hindi meaning will be इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही थी या फिर इंग्लिश पूरी दुनिया में बोल रहे थे. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ इट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जांपल. ये हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है. नाउ वी डू मोर एग्जांपल. Our nation was being defended by our nation was being depended by soldiers. Our nation was being depended by soldiers. Its Hindi meaning will be हमारा नेशन की सोल्जर के द्वारा रक्षा की जा रही थी. हमारे नेशन की सोल्जर के द्वारा रक्षा की जा रही थी. That is its Hindi meaning. यदि आप ऑप्शनल एजेंट को पुट नहीं करना चाहते बाय पैसिव ऑब्जेक्ट को, तो आप इसको हटा भी सकते हैं. आप यहाँ पर डिपेंडेंट तक लिखें, समझे ऐसा. Our nation was being dependent means हमारे देश की रक्षा की जा रही थी. हम ऐसे ही बोलते हैं हमारे देश की रक्षा की जा रही थी कि हमारा पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा. Our nation was being dependent. Now next example. Traffic
were being followed by commuters. Traffic rules were being followed by commuters. Traffic rules were being followed by commuters. Its Hindi meaning will be ट्रैफिक रूल को कम्यूटर्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा था या फिर ट्रैफिक रूल को कम्यूटर के द्वारा फॉलो कर रहे थे. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ फॉलो के प्लेस पे आप ऑबिट का भी रोल प्ले कर सकते हैं. बहुत सारा सिमिलर मीनिंग नहीं. ऑबिट कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ फॉलोड. बहुत सारा सिमिलर मीनिंग. आप ऑबे को लिखें चाहे फॉलो को लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है. आप दोनों में से किसी भी पुट कर सकते हैं, किसी को भी. कम्यूटर मीन्स दोस्त हु ऑपरेट व्हीकल, वी कॉल इट कम्यूटर्स. जो गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, वी कॉल इट कम्यूटर. हम उन्हें कम्यूटर कहते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, बुक्स were being brought from shop. Books were being brought from a shop. Books were being brought from a shop. Its Hindi meaning will be बुक्स को शॉप से ला रहे थे या फिर बुक्स को शॉप से लाया जा रहा था. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट was being kept by devotees. Fast was being kept by devotees. Fast was being kept by devotees. Its Hindi meaning will be व्रत डिवोटीज द्वारा रखा जा रहा था. व्रत डिवोटीज द्वारा रखा जा रहा था. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. यहाँ फास्ट मीन्स तेज नहीं है. फास्ट का मीनिंग होता है व्रत या फिर उपवास. डिवोटीज मीन्स श्रद्धालु. नाउ ऑन नेक्स्ट एग्जांपल, clothes were being stitched there. Clothes were being stitched there. Clothes were being stitched there means वहाँ कपड़े सिले जा रहे थे. वहाँ कपड़े सिले जा रहे थे या फिर वहाँ कपड़े सिल रहे थे. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. और नेक्स्ट एग्जांपल, fair was being held here. Fair was being held here. Fair was being held here. Its Hindi meaning will be मेला यहाँ लगाया जा रहा था या फिर मेला यहाँ लगा रहे थे. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ
Here you have seen how to construct passive voice in past continuous tense. We have seen its structure. Here I have told you its different structure for framing of sentence. Now, and I have told you difference between old structure and new structure. You can use any structure, that is your choice. And we have seen various illustrations in affirmative sentence, assertive and declarative. All are same. You have to construct various sentences to improve your communication skill, and you have to use this sentence for your daily conversation. And whenever you meet with your friend, colleagues, mate, you have to put such type of sentence by using conversation. Now, here I add your affirmative sentence in passive voice for past continuous tense. अभी मैं यहाँ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का affirmative सेंटेंस का टॉपिक एंड करता हूँ. यहाँ पे हमने इसके इलस्ट्रेशन भी देखे और मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर भी बताया. हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज करके पैसिव वॉइस की फ्रेमिंग करनी है. और यहाँ पे मैंने आपको बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल भी बताया, किस जगह पे हमें बाय पैसिव ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करना है और किस जगह पे नहीं करना है. आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की फ्रेमिंग करें, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करेगा और आप इन सेंटेंस को आपके डेली कन्वर्सेशन में यूज करें और आपके फ्रेंड, कलीग, मेट के साथ इसको कन्वर्स करें. कंटिन्यू फॉर वॉचिंग इट्स नेक्स्ट पार्ट. इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. दैट्स